This season of On the Contrary by IDR is supported by Hindustan Unilever Foundation, or HUF, a private foundation that supports and amplifies scalable solutions around India's diverse water challenges. You're listening to On the Contrary by IDR, a show featuring unlikely conversations on topics that affect our future. Hear differing perspectives from leaders and experts as they help us make sense of the most pressing issues of our time. Here's your host, Sneha Philip. This episode of On the Contrary by IDR was originally recorded in Hindi. Key insights from the conversation will be captured in English for those who may not understand the language. Today I'm in conversation with Bharat Bhushan and Devdutt Singh, two civil society leaders belonging to different generations, both of whom have witnessed India's changing agricultural landscape at different points in time. Bharat Bhushan is the chief functionary and one of the founders of People's Action for National Integration, or PANI, a non-profit working with marginalized communities in Uttar Pradesh. Bharatji has been actively involved in social change movements from a very young age and has vast experience in implementing integrated development programs in rural India. Devdutt Singh is an agribusiness expert. He's the director of operations at PANI, where he brings in several decades of experience in leading and managing development projects. Devdutt's areas of expertise include ecological farming, climate change, rural economic development, and agribusiness development. Today, we're going to be speaking about India's ever-evolving relationship with agriculture. We know that agriculture plays a vital role in India's development story, whether in terms of the livelihoods it supports, the food security that it ensures, or its contributions to trade and GDP. In this episode, Bharatji and Devji will dip into the past, tell us how we got to where we are today, and also discuss the future of farming, particularly in light of the current threats of climate change, water security, and a generation of young people who no longer aspire to be farmers. Bharatji, aapse shuru karte hain. You've been deeply involved in rural development for several decades, whether through your participation in social movements or your work at PANI. You've also worked closely with farmers and advocated for their rights. And so we could say that you've witnessed how agriculture has evolved in our country. Could you tell us about the evolution of agriculture in India? कि इसका इतिहास बहुत पुराना है, 1100 साल पुराना है, जो कि हमारे ग्रंथ में भी है कि हम खेती आधारित ही देश रहे, हमेशा कृषि आधारित. लेकिन उस समय जो ज़्यादातर खेती हमारी मानसून पे निर्धारित थी, और जो मानसून से हो जाता था वो ठीक है, नहीं तो आपदाएं भी आ जाती थी, तो बिल्कुल कुछ नहीं होता था. जिसका परिणाम ये हुआ था कि 1943 में एक बहुत बड़ा अकाल बंगाल में हुआ था. आज़ादी के पहले की बात कर रहा हूँ मैं. और काफ़ी लोग उसमें, करीब 10 लाख से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे उसमें. तो वो स्थिति थी हमारी खेती की. So we've been an agrarian country for centuries, but prior to independence we weren't producing enough to meet our needs. What changed post-independence? आज़ादी के बाद हमारे यहाँ जो सरकार आई हमारी, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया और उन्होंने ये कहा कि सारे चीज़ों का इंतज़ार किया जा सकता है, लेकिन खेती के लिए इंतज़ार नहीं किया जा सकता, इसको तो बढ़ावा देना ही पड़ेगा. तो उन्होंने एक हरित क्रांति की पॉलिसी ली, और उस पॉलिसी के तहत अच्छे से, मुझे लगता है पहली पंचवर्षीय योजना से ही उस पर काम हुआ, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ा. और अगर उसको हम देखें तो इस काल में हम इस तरह से देख सकते हैं कि 1950 तक भुखमरी का काल था, 1950 से 1970 खाद्यान्न की कमी थी, और 1970 से 2000 तक फूड सफिशिएंट हम हो पाए. तो ये एक जो हरित क्रांति हुई, उससे ये फ़र्क पड़ा. और आज हम 2010 के खाद्यान्न सुरक्षित, मतलब फूड सिक्योरिटी में है, और आज हम निर्यात करने की स्थिति में, लोगों को देने की स्थिति में है. हमारे यहाँ से अनाज जाता है, और इसीलिए हम शायद कृषि प्रधान देश कहे जाते हैं, और कोई देश कृषि प्रधान नहीं कहा जाता है, क्योंकि हमारा ये इतिहास है. तो इस तरह से कुल मिला के अगर देखें तो ये
आज़ादी के पहले की स्थिति और आज़ादी के बाद की स्थिति कुल मिला के यही रही खेती को लेकर के। Thank you, Bharatji, for tracing the evolution of agriculture in India. From a state of near starvation to now being a food-secure nation that exports grains to other countries, we've come a long way. And of course, the policies that the government adopted post-independence have played an important role in this. The Green Revolution in particular was a turning point, and a lot has changed since it was introduced. Devji, coming to you, जब से हरित क्रांति यानी कि since the Green Revolution was initiated in the 60s, how has agriculture changed? पिछले 3-4 दशकों में अगर आप बात करें तो कृषि में बहुत बदलाव आया है। जैसा कि हरित क्रांति के बाद हमारे उत्पादन बढ़ा, हम फूड सफिशिएंट हुए, लेकिन उसके अपने कुछ और भी प्रभाव रहे, उसकी अपने कुछ और भी परेशानियां रहीं। हम उत्पादन बढ़ाने की होड़ में, उस दौड़ में हम अपने प्राकृतिक संसाधनों, खास करके ज़मीन और जल का संरक्षण नहीं कर पाए। बहुत अंधाधुंध हमने रासायनिक उर्वरकों और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया, जिससे कि हमारी भूमि भी खराब हुई। इस परिवर्तन के साथ अगर हम आंकड़ों पे जाएं तो आंकड़े कई बार हमें बहुत ही धूमिल स्थिति परिस्थितियां दिखाते हैं। हम अगर ये देखना शुरू करें कि हमारे देश में कितना प्रति एकड़ केमिकल का इस्तेमाल होता है, तो वो शायद राष्ट्रों जैसे कि जापान और अमेरिका के मुकाबले काफ़ी कम दिखाई देता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पेस्टिसाइडल रेजिड्यू और केमिकल रेजिड्यूज़ की बहुत परेशानी है, जिससे कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हमारे पिछले 4 दशकों की जो प्रगति है वो हमें बहुत पीठ थपथपाने के लिए प्रेरित करती है अपनी, लेकिन साथ ही साथ हमें पीछे मुड़ करके देखने के लिए भी कहती है कि हमने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को हमें सुधारना पड़ेगा। हमारे देश की और हमारी कृषि की उन्नति हो सकती थी, लेकिन शायद वो नहीं हो पाया। ये हमारे उस देश में एक दुर्भाग्य की बात मैं कहूँगा कि हुआ, और ऐसा नहीं हो पाया। So while the Green Revolution successfully increased the output of our land, it also had other repercussions, and we're still dealing with them. There's a study, for example, that explores how food grain production in India rose from 82 million tons in the late 1960s to 264 million tons in 2013-14. That's a lot. But along with this switch to high-yielding varieties of rice and wheat during the Green Revolution, farmers were also encouraged to use chemical fertilizers and pesticides to increase their yield. And the persistent use of chemicals over time has led to the degradation of our soil and water. Shifting gears slightly, Bharatji, if we talk about the rural economy today, जिसको हम ग्रामीण इकोनॉमी भी बोलते हैं, how would you describe the role of agriculture in India's rural economy? देखिए, कृषि का रोल तो हमेशा से रहा है, और उसके साथ साथ पशुपालन या कृषि से जुड़े और जो जैसा दूध का उत्पादन, मछली का उत्पादन की बात हो रही है, इन सब सारी चीज़, ये सारे सब कृषि से ही जुड़े हुए हैं। तो अगर इकोनॉमिक की बात करें, ग्रामीण इकोनॉमिक की और एग्रीकल्चर इकोनॉमी की, तो एक उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच में अगर आज करें हम लोग, या जहाँ भी थोड़ा बहुत लोग कर रहे हैं राज्यों में या क्षेत्रों में, वहाँ फ़र्क दिखता है, लेकिन वो बहुत ही छोटे छोटे स्तर पर प्रयास हो रहा है। सरकार की तरफ से उसको अगर पूरा एक नियोजनबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वो इकोनॉमी में कर सकता है। दूसरा ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे किसान भाई बहन हैं, दोनों मिल के काम करते हैं, तो उनके श्रम का जो मूल्य है, मूल्य मतलब मैं पैसे से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मूल्य मतलब उनको सम्मान मिलना चाहिए, वो भी हमारे समाज में कम है, और उसका कारण बहुत हो सकता है। तो वो सम्मान भी उनको अगर मिले तो उनकी पहचान, और पहचान के साथ उनका फिर अपना एक स्वाभिमान भी बढ़ेगा, और उस स्वाभिमान को बढ़ने से वो स्वावलंबन की तरफ जाएंगे। वो गैप है, एक अंतर है। अब वो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, वो अलग विषय है, लेकिन अगर वो हो सकता है, कृषि को अगर सम्मान का दर्जा दिया जाए, तो अभी भी कृषि से अच्छा इकोनॉमिक पावर अपने देश को और कोई शायद उद्योग नहीं दे सकता। और अगर आप देखें, थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान दें, कोरोना काल में अगर हमारा देश कृषि प्रधान देश नहीं होता और गांव का देश नहीं होता, तो हमारे देश की स्थिति कुछ और होती। और आज भी हमारी सरकार कृषि आधारित ही अनाज का वितरण कर रही है, मुफ्त अनाज जो, तो ये सारा तो सब वहीं से आ रहा है।
लेकिन उस स्तर पे उसको सम्मान नहीं है। ये ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है और मुझे लगता है क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल भरत जी, जैसे कि आपने कहा, ड्यूरिंग कोविड-19 the country would have suffered far more than it did if it weren't for our farmers, and we need to recognize that contribution. The other interesting thing that you said was that the government needs to look at the rural economy as a whole. Now, what this means is that in addition to the focus on agricultural crops, it also needs to look at other livelihoods, such as animal husbandry, dairy farming, fish production, and so on. And an integrated approach to rural development that accounts for these livelihoods would significantly boost our rural economy. Devji, we've touched upon the role that the government can play. What do you think is the role of the private sector in relation to agriculture and the rural economy? देखिए, प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है और अभी तक भी प्राइवेट सेक्टर ने अपना रोल किया है, अच्छी तरीके से किया है, उससे नकारा नहीं जा सकता। अगर आप एक बहुत ऑथेंटिक डेटा तो नहीं है, लेकिन एक डेटा ये कहता है कि पूरे भारतवर्ष में सरकारी एक्सटेंशन वर्कर्स की संख्या इतनी कम है कि एक किसान 16,000 किसानों के पीछे एक एक्सटेंशन वर्कर है, और उस एक्सटेंशन वर्कर की वजह से ही जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, प्रैक्टिसेस हैं, लोगों तक पहुंच रही हैं। तो एक एक्सटेंशन वर्कर 16,000 किसानों तक तो नहीं पहुंच सकता। तो एक्सटेंशन वर्क के साथ साथ अपने प्रोडक्ट की सेल्स के लिए प्राइवेट कंपनीज बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में गई हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, चाहे वो सीड की कंपनियां हों, चाहे वो उर्वरकों की कंपनियां हों, चाहे वो पेस्टिसाइड की कंपनियां हों। उन्होंने इसमें बहुत अपना योगदान दिया है। अभी जो परिस्थिति हमारी चल रही है, जिसमें कि हम सरकार एफपीओज़ को प्रमोट कर रही है, एफपीओज़ के साथ कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स के कंसोलिडेशन और उनके बाईबैक अरेंजमेंट के लिए प्राइवेट कंपनियों की बड़ी भूमिका हो सकती है। उनके भंडारण के लिए, उनके स्टोरेज के लिए बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। उसके बाद एक उनके प्रोसेसिंग के में जाने के लिए उनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। अगर एक रफ आंकड़ा देखें तो हिंदुस्तान में करीब 26% जो हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाता है। अगर हम 26% बचा लें तो हमारा उत्पादन इफेक्टिवली 26% बढ़ा हुआ माना जाएगा, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका है हमारे प्राइवेट सेक्टर की, जो कि वो इस काम को कर सकते हैं। So the private sector has a significant role to play in taking new tools and technologies to farmers. It has also taken seeds, fertilizers, and pesticides to farmer groups. Devji, you also mentioned farmer producer organizations, or FPOs. These are groups of farmers that come together to leverage the advantages of collectivizing. They pool their resources and therefore reduce their risks and increase incomes. What you're saying is that the private sector can create markets for these farmer collectives and help them store and process agricultural products, something that small farmers typically don't have the expertise and resources to do. How else can the private sector help? प्राइवेट सेक्टर के साथ एक बहुत बड़ी भूमिका जो कि आगे आने वाले समय के लिए है, वो ये है कि जिस तरह से हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और इस क्लाइमेट चेंज से जूझने के लिए जो हमें रिसर्च की आवश्यकता है, उस रिसर्च को भी ये फीड इन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपनी प्रजातियां निकालती हैं, अपने केमिकल्स लेकर के आती हैं, उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अवसर है कि वो जलवायु रेजिलिएंट, क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट इनपुट्स के लिए रिसर्च में पैसा डालें और उनको लेकर के आएँ। और क्योंकि उनके पास कस्टमर बेस भी है, और अगर वो उसको लेकर के फिर मार्केट में जाती हैं तो शायद उनके लिए एक बड़ा बिजनेस बन सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट कंपनियों को एकदम से देश सेवा में अपने सारे संसाधन लुटा देने चाहिए, लेकिन उन संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल करें जिनसे कि कृषि का भी विकास हो और उनका भी फ़ायदा हो। तो ऐसी स्थिति आ सकती है। You're listening to On the Contrary by IDR. We'll be right back after this break. Most of us don't like to fail, and so we try and avoid it at all costs. But failure is natural, and there can be no success without it. In fact, it teaches us invaluable lessons about what not to do and how to make things right. IDR's podcast, Failure Files, puts stories of failure front and center, where you can listen to candid perspectives and lessons from social entrepreneurs working on some of the world's toughest problems.
Listen and subscribe to the show on your favorite podcasting app. And now, back to the show. So we've been speaking about a few different dimensions of agriculture in India. Is there anything you think our listeners will be surprised to learn about when it comes to agriculture? Devji, coming to you first. देखिए 2050 तक हमारी जनसंख्या 160 करोड़ होने वाली है। अभी हम 314 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन पे हैं। हमें 4% की वृद्धि हर साल करनी है, तब हम जा कर के इस 400 मिलियन टन की जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी 2050 में उसको पूरा कर पाएंगे। ये मैं सिर्फ अपने देश भारत की बात कर रहा हूँ। So we have to increase our food grain production fourfold each year for the next 3 decades to fulfill our requirement of 400 million tons by 2050. और उसको आगे लाने के लिए जो आज हमारे देश में एक ऐसा माहौल है जिसमें कि युवाओं का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कृषि से युवा भाग रहे हैं। तो जान करके आश्चर्य हमारे ऑडियंस को इस बात पे हो सकता है कि एग्रीकल्चर इतना रिम्यूनरेटिव है कि इसमें युवा अपना रोजगार तलाश सकते हैं और बड़े काम कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे स्टार्टअप इस देश में अभी शुरू हुए हैं जो कृषि आधारित हैं, वो बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा अवसर देश के युवाओं के पास है कि वो कृषि में रोजगार तलाशें और इस कृषि को पूरी तरह से रिफॉर्म कर दें। अगर आप देखें तो सरकार ने ये प्रण लिया है कि वो इनकम डबल करना चाहते हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ 20% कम करना चाहते हैं और जल का यूज़ 25% कम करना चाहते हैं, मीथेन का एमिशन जो है 45% कम करना चाहते हैं। जब ये सब कुछ करना चाहते हैं तो ये सरकारें तभी कर पाएंगी जब इसमें युवा आएंगे। अगर इसमें युवा नहीं आएंगे तो ना तो ये सरकार से हो पाएगा, ना हमारी बुजुर्ग होती हुई किसान की पीढ़ी से हो पाएगा। तो हमें इसमें युवाओं को आने की ज़रूरत है और युवाओं को अपना योगदान देने की ज़रूरत है। मुझे लगता है इस बात से लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि कृषि में युवाओं के लिए स्थान है, इसलिए मैंने ये बात कही। So there's a huge opportunity for the youth of our country to find employment in agriculture. And this in turn will help reform the sector, which is crucial if we are to meet these production goals by 2050. Bharatji, what are your thoughts on this? What will our listeners be surprised to learn about agriculture in India? नहीं, अब जैसा मैंने अपनी पहले बात में कहा कि कृषि प्रधान देश, गांव प्रधान देश होने के बावजूद भी अभी हमारे बहुत से हमारी जनसंख्या वंचित है इन सब जानकारियों से कि खेती होती क्या है, गांव होता कैसा है, गांव के लोग कैसे होते हैं। ये भी हमारे लिए एक आश्चर्य का विषय है और दुख का विषय भी है, क्योंकि सबको जानना चाहिए, क्योंकि आबादी सबसे ज़्यादा अभी भी गाँव में ही बसती है। अभी भी इतना शहरीकरण हो गया है, उसके बाद भी 73% लोग अभी गांव में हैं। तो 73% को जानने की ज़रूरत है सबको। सरकार जैसे और सब चीज़ों के लिए प्रयास करती है, वैसे इसके लिए भी उसको एक कोशिश करनी चाहिए कि 73% की आबादी को समझने के लिए, वो उनका सब कुछ कृषि आधारित है या उससे जुड़ा हुआ है, उसको समझने के लिए अगर वो एक प्रयास करे तो लोगों को आश्चर्य ज़रूर होगा कि इतना ज़मीन जो अपनी है वो कितना महत्वपूर्ण है, जिस पे हम पैदा हुए, जिस पे हम जी रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं जानते। हमारे बहुत से युवा जो गांव में नहीं गए या कोई कनेक्ट नहीं है, तो कहीं मिल जाते हैं तो पूछते हैं कि कैसे होता है। तो तब आश्चर्य होता है कि इतना विश्वविद्यालय खुल गए हैं कृषि आधारित शिक्षाओं के लिए, उसके बावजूद भी लोग नहीं जानते। तो इस पर बहुत जोर देने की ज़रूरत है। एक आश्चर्य का विषय है ये। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए जब है तो और लोगों के लिए भी हो सकता है कि हो। Yes, it's surprising that even though we are an agrarian country with a huge rural population, many of us, especially those who live in cities, don't know very much about our rural economy. Keeping all of this in mind, if we think about the future of agriculture through the lenses of food security, water security, and climate change, what needs to change or shift? Devji? आगे जाते हुए स्नेहा जी, देखिए जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है, हमें अपने कृषि के पूरे तौर तरीके को बदलना पड़ेगा। सरकार ने हालांकि अभी बहुत सारी घोषणाएं की हैं, प्राकृतिक खेती, मिलेट की खेती, मिलेट को अपने प्लेट में शामिल करने की बात, वो बहुत सराहनीय कदम है, करने की आवश्यकता है।
अब जलवायु परिवर्तन के लिए हम सिर्फ प्राकृतिक खेती और मिलेट के इस्तेमाल से ही हम शायद इस समस्या से नहीं निकल पाएंगे। उसके लिए एक हमें समेकित योजना बनानी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इस उभरते हुए चैलेंज से मुकाबला कर पाते हैं, और उसके लिए सबको साथ आना पड़ेगा, चाहे वो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो एक्सटेंशन इंस्टीट्यूशंस हों, सभी को आना पड़ेगा। क्योंकि नई अनुसंधान की गई चीज़ें एक्सटेंशन सिस्टम के द्वारा बच्चों को पढ़ा करके और एक्सटेंशन सिस्टम के द्वारा वो किसान तक पहुंचनी बहुत आवश्यक है। पहली बात तो ये ज़रूरी है कि हमें एक पूरी चेन बनानी पड़ेगी जिससे कि हम इस चैलेंज को कम कर पाएँ। आगे जाते हुए हमें अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में सोचना ही पड़ेगा। जल का संरक्षण कृषि में करना ही पड़ेगा। हमें ऐसी फसलों का चुनाव करना पड़ेगा जिनको कि जल की कम आवश्यकता है। जल जितना उपलब्ध है उसके हिसाब से अपनी कृषि प्लान करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। So you're saying that while organic farming and the focus on millets are important steps towards climate action, they aren't enough, right? We need consolidated policies and various stakeholders have to come together to solve the challenges that confront us. We also need to think about the health of our soil and how we conserve water in agricultural processes. Moving forward, farmers will need to choose crops that require less water. एक बात मैं अगर कहूँ, हो सकता है कि ये बहुत ही दार्शनिक जैसी बात लगे, लेकिन सच ये है कि हमें अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। जब तक हम वो नहीं करते हैं, अपनी जीवन शैली में जब तक बदलाव नहीं करते हैं, हम क्यों, अगर एक नॉर्थ इंडिया में बैठ करके हम गर्मी के दिनों में हम ब्रोकली क्यों खाना चाहते हैं, हम गोभी क्यों खाना चाहते हैं, हम क्यों दूसरी जगहों से ट्रांसपोर्ट करके फल लाते हैं, क्यों इतना कार्बन एमिशन करते हैं, हमें अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। उस बदली हुई जीवन शैली में कृषि जो लाइफस्टाइल की तरह होती थी पहले, वो लाइफस्टाइल की तरह करनी पड़ेगी। अगर हम जब तक इसको मुनाफे का सौदा, सिर्फ मुनाफे का सौदा मानते रहेंगे, तब तक हम ये गलतियां करते रहेंगे जो हमने हरित क्रांति के बाद की हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे कृषि को जीवन शैली बनाते हैं और अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाते हैं। तभी हम शायद कृषि को भी लंबे समय तक कर पाएंगे, तभी हम इस प्लैनेट को भी सुरक्षित रख पाएंगे। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल घड़ी हमारे लिए आने वाली है। So देव जी, आप कह रहे हैं that we should move beyond thinking about agriculture as a profitable venture, or we'll continue to make the same mistakes we made after the Green Revolution. Bharat ji, what do you think we should be doing moving forward? अब अगर आप देख लें, एक बहुत छोटी सी चीज़ है भूमि का बंटवारा। ज़मीन हमारे पास है, लेकिन उसकी भी स्थिति बहुत सामान्य तरीके से नहीं है। हमने तो भूदान आंदोलन भी देखा, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। विनोबा जी का जो सोचना था कि सबके पास भूमि हो, तो एक तो ये कि ज़मीन सबको कैसे, क्योंकि खेती को अगर हम बदलना चाहते हैं तो कुछ बड़े किसान या कुछ मध्यम किसान के माध्यम से छोटे किसान जो है उनको भी शामिल करना, मतलब सबको शामिल करना पड़ेगा। हम सिर्फ कहेंगे कि बड़े किसान ये कर देंगे और सब हो जाएगा, तो वो संभव दिखता नहीं है। To give our listeners some context, Vinoba Bhave, a social reformer and freedom fighter, started the Bhudan movement in a village in Telangana in 1951. He went from village to village and convinced the landlords to voluntarily donate their land to farmers. He also convinced the government to turn it into a law and distribute land equally or as per people's requirement. तो भूदान आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में। मैं 12-13 साल का था तब मैंने उसको देखा था, और हमारे माताजी पिताजी तो उसके हिस्सा रहे, तो इसलिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम नहीं, एक आंदोलन था। और आज भी भूदान की ज़मीनें हर जगह पड़ी हैं, लोगों को मिली भी हैं, कुछ को नहीं मिली है, मतलब वो संतुलन नहीं है ठीक। तो एक तो ज़मीन का जो संतुलन है बंटवारे का, सबके पास हो। और जैसे अभी बताया इन्होंने कि मिलेट की बात की जा रही है या प्राकृतिक खेती की बात की जा रही, तो जब तक सब लोग नहीं करेंगे तब तक वो स्वीकार्य नहीं होगा। हम कुछ लोग करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में लेना पड़ेगा। This has been such an eye-opening conversation. Like you both have said, farming and agriculture in India have come a long way.
but there is also an urgent need to reassess where and how we go from here, especially as we deal with the climate crisis. Short-term thinking can have no place in our plans for agriculture in India. We need to invest in the health of our soil, conserve water and use it efficiently, keep farmers at the forefront of our agrarian policies, and build a future in which young people want to be a part of India's agricultural economy. Thank you, Bharatji and Devji, for a wonderful conversation. On the Contrary by IDR is produced by Rachita Vora, Smaranita Shetty, Sneha Philip, and me, Shreya Adhikari. Additional support from Halima Ansari. Production by Made in India. If you like our show, please subscribe and leave us a review wherever you get your podcast from, so more people can find out about us. You can also email us on write to us at idronline.org or find us on Facebook, Instagram, Twitter, or LinkedIn. Thank you for listening and see you next week.